Hello students, today we are going to study the chapter Is Matter Around Us Pure? Okay, in previous chapter we have studied matter in our surrounding. So once again I am explaining here what is matter. So matter, anything which occupies space and has mass is called matter. Okay, matter can be solid, liquid and gas. So what is our topic? Topic is that is matter around us pure? So answer is that no. All matter around us is not pure. Some are in the pure form and some are in the impure form. So matter can be divided into two parts, pure and impure. Pure matter and impure matter. So what is pure matter? A substance which is made up of only one kind of particles is called pure matter. Okay, the substance which is made up of only one kind of particles. Particles may be atom or may be molecules. Then impure matter, a substance which is made up of more than one kind of particles. More than one kind of particles is called impure matter. Okay, the substance which is made up of more than one kind of particles. Okay, here only one kind of particles. Substance is made up of only one kind of particles. So pure substance can be divided into two types. Pure substance is divided into two types: element and compound. Pure substance may be element or may be compound, and impure substance is called mixture. It is only one type, that is the mixture. So very first we study about the element. What is element and examples of elements is it? Okay, element. Okay, element is a substance which is made up of only one kind of atom. Okay, element is a substance which is made up of only one kind of atom. Okay, only one kind of atom. Okay. Element is a substance which is made up of only one kind of atoms. It may be three types. Okay, it is three types. Metal, non-metal, and third, metalloid. Okay, so elements are three types: metal, non-metal, and metalloid. Okay, metals. Example of metal: gold, silver, copper, nickel, iron. These all are the example of metals. So qualities of metal: metal is a ductile. It can be drawn into a thin wire. Metal can be converted into a thin sheet, that is the malleability. Some metals are sonorous. Metals produce the deep ringing sound. Okay, some metals are lustrous, that means have a shiny surface.
okay, and then non-metals. So example of non-metals: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sodium, potassium. Okay, so non-metals have a not lustrous quality. It is not lustrous, non-ductile also, non-malleable. It cannot be converted into a thin sheet. It cannot be drawn into a thin wire. Okay, and metalloid. Okay, metalloid, very few elements are have some qualities of metal and other qualities of non-metals. That means मेटेलॉइड जो है वो उनमें कुछ क्वालिटीज मेटल की हैं और कुछ क्वालिटीज किसकी हैं, नॉन मेटल्स की हैं. एग्जाम्पल ऑफ सम मेटेलॉइड इज जर्मेनियम एंड बोरॉन. Germanium, boron, these are the metalloids. Okay, so metal, non-metal and metalloid, they are the elements. अच्छा, मेटल्स को, कॉपर को और सिल्वर को, गोल्ड को एलिमेंट क्यों कहा है? क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. अगर कोई कॉपर का पीस है, आप उसका कितना भी बारीक पाउडर बना दे, उसका एक पार्टिकल जो छोटा से छोटा पार्टिकल से है वो भी क्या होगा, प्योर कॉपर ही होगा. मान लीजिए कॉपर का इतना बड़ा पीस आपको दिया है, ठीक है, इस पूरे पीस में ये प्योर कॉपर है आपका. ठीक है, तो हर एक पार्ट, चाहे इसका कहीं से भी आप कट कर लीजिए, हर एक पार्टिकल्स, हर एक एटम किसका बना है, कॉपर का. ठीक है, इसको यहां से भी काटेंगे तो ये आपको कॉपर का एटम ही मिलेंगे, कहीं से भी कट करेंगे आपको ये कॉपर के एटम्स मिलेंगे, प्योर है ये. सेम ऐसे ही नॉन मेटल कार्बन है, कार्बन को भी आप कार्बन, प्योर कार्बन अगर है तो उसका हर एक पार्टिकल्स किससे मिलकर बने हैं, वो हर एक एटम क्या है, वो प्योर कार्बन का एटम है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स. मेटल और नॉन मेटल पे मैंने बहुत अच्छे से एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. ठीक है, अब हम चलते हैं कंपाउंड पे. नाउ कंपाउंड, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ओके, विच इज केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. ओके, जो आपका कंपाउंड है, वो कंपाउंड जो है वो भी क्या है, टू और मोर देन टू एलिमेंट से मिलकर बना है, लेकिन फिर भी इसको हमने प्योर में कंसीडर किया है. क्यों कंसीडर किया है प्योर सब्सटेंस में? क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में. उनका जो एटम्स के जो प्रोपोर्शन है वो एकदम फिक्स्ड होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल है, कंपाउंड का एग्जांपल है वाटर. ठीक है, वाटर इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कंपाउंड. सो वाटर इज मेड अप ऑफ बाय द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स प्रोपोर्शन है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. देन CO2, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल. HCl, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल. सो ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे एक या दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं. जैसे जो वाटर है वो मिलकर बना है 2 एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड वो भी 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन HCl आपका मिलकर बना है, वो भी 2 एलिमेंट से मिलकर बना है. हाइड्रोजन प्योर एलिमेंट है, क्लोरीन प्योर एलिमेंट है, लेकिन जब ये केमिकली कंबाइन हुए तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, और इनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है और क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल है. कहीं भी कैसे भी आप अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ढूंढेंगे तो आपको उसमें हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल मिलेगा और क्लोरीन का 1 ही मॉलिक्यूल रहेगा, क्योंकि इनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड होता है. ठीक है, सो कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स. सो सम एसिड एग्जांपल इज देयर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3. Some more acids are there, acetic acid, okay, formic acid, citric acid, malic acid. Okay, these all are the example of acids. Now bases, some example of bases: NaOH, KOH, calcium carbonate, okay, NH4OH. These all are the example of bases. Now salt. So NaCl, calcium chloride, magnesium chloride, zinc chloride, these all are the example of salts. So this is the pure matter, okay, element and compound. But what is the difference between element and compound? In element is made up of only one kind of atom. जितने भी जो भी आपका एलिमेंट है उसमें केवल एक ही तरह के एटम होंगे सारे. ठीक है, बट कंपाउंड में क्या है,
आप कंपाउंड जो है उसमें एक या दो तरह के एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन वो जो कंपाउंड होते हैं उनका वो केमिकली कंबाइन होते हैं, उनका प्रोपोर्शन बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, तो ये है आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड। एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर, जो कि है आपका इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर, a mixture is a substance which consists of two or more element or compound not chemically combined together। ठीक है, जो मिक्सचर है उसमें एक या दो एलिमेंट्स या उससे भी ज्यादा एलिमेंट और या कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, साथ में रहते हैं। दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ओके, एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर इज द एयर। ओके, इनसाइड द एयर सो मेनी गैसेज आर देयर। व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड देयर and oxygen is there, nitrogen is there, okay, and other gases are also there, but they are not chemically combined together. Okay, they are in air, oxygen in pure form, carbon dioxide in pure form. Okay, so but they are together. Okay, another example is blood. Okay, blood, many substances are present inside the blood. Organic substances are there, inorganic substances are there, water molecules are there, hormones are there, enzymes are there, but they all are in the pure form. They all are not chemically combined together. Okay, so that is the mixture. Wood, soil, they are the example of mixture. Now, all solutions are mixture. Whatever the solution, they all are the mixture. Salt solution, sugar solution, petrol, diesel, soda, lemonade, they all are the mixture. So there are two types of mixture: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, very first we see the homogeneous mixture. Those mixture in which substance are clearly mixed together, completely mixed together, that is called the homogeneous mixture. Okay, whatever the solution is the मिसिबल सॉल्यूशन। अगर आपने क्या किया है, एक ग्लास वाटर लिया, उसमें 2 चम्मच शुगर ऐड कर दिया है। जब शुगर उसमें कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगी तो आपको अलग से शुगर दिखाई नहीं देगी। शुगर पे के पार्टिकल्स जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए, तो अलग से आपको शुगर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मिसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर आपने शुगर की जगह सॉल्ट लिया है और अच्छे से डिसॉल्व किया है तो सॉल्ट के पार्टिकल्स भी क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे और हम क्लियरली देख नहीं पाएंगे सॉल्ट के पार्टिकल्स को अलग से। सो एग्जांपल है ये होमोजेनियस सॉल्यूशन। ब्रास जो है वो जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें जिंक अलग से और कॉपर अलग से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, पेट्रोल और कैरोसिन प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये भी क्या है, आपका एक तरह का मिक्सचर है, जिसको हमने बोला है होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म्स हैं। ठीक है, सो दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर। दे आर द मिसिबल मतलब जो दो सॉल्यूशन इस तरह से मिक्स हो जाए, दो चीजें इस तरह से मिक्स हो जाए कि उनको अलग अलग से नहीं देख पाए, तो हम उनको क्या करेंगे, दैट इज द मिसिबल सॉल्यूशन। नाउ heterogeneous mixture, those mixture in which substance are not completely mixed together। ठीक है, इतना भी आप मिक्स कर लें, अगर वो completely मिक्स नहीं होंगे तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे heterogeneous mixture। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या होता है, इमिसिबल होता है, क्योंकि आपको दोनों ही जो सब्सटेंस है जिनको आपने मिक्स किया है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज द इमिसिबल सॉल्यूशन। ठीक, एग्जाम्पल, शुगर एंड सैंड। शुगर लिया है आपने, उसमें सैंड को मिक्स कर दिया है, तो शुगर के पार्टिकल्स अलग से दिखाई दे रहे हैं, सैंड के पार्टिकल्स बहुत क्लियरली अलग से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मिल्क में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्या होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है मिल्क भी, क्योंकि आप बहुत क्लियरली ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है वो। ठीक है, वाटर और सैंड, वाटर के अंदर आप सैंड कितना भी डिसॉल्व कर दें, कितना भी उसमें मिक्स कर दें आप, लेकिन आपका सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा और अलग से सेपरेटली दिखाई देगा। वाटर में ऑयल को मिक्स करेंगे तभी ऑयल की लेयर अलग और वाटर अलग से आपको क्लियरली दिखाई देगा। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं इमिसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, चॉक पाउडर को अगर वाटर में मिक्स करेंगे तभी चॉक सेटल डाउन हो जाएगी। फ्लोर को वाटर में मिक्स करेंगे तो फ्लोर आपका क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, वाटर ऊपर और फ्लोर नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपको समझ में आया होगा। तो इस अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं हमने, कंपाउंड पढ़ लिए हैं हमने, और हमने पढ़ा है मिक्सचर। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स।